Hello, how are you all? Good. So I'm again here with a new topic, that is interest on capital. Before starting the topic, let me clear one thing. It is the online class especially for the students of Cambridge International School, but students of other schools can also join the class because due to lockdown session, no school is running their offline classes, so you can take the advantage. So in this first chapter of partnership, that is fundamental, that means basics of partnership, we are going to discuss one, or you can say one of the most important topic of this chapter, that is interest on capital. Before going through the interest on capital, we'll see that what are the rules and provisions as per the Partnership Act 1932. What are the rules and provision applicable for interest on capital on any partnership form? So I'm going the rules and provision for that interest on capital. There are basically 3 points or 3 cases which are related to interest on capital, which is very important. You need to clear it before going to the practical aspect. So first point, if in the absence of agreement, I think this topic have also been discussed earlier in previous or last to last video, that in case of absence of agreement, that whether interest on capital would be provided to the partners or not, in that case no interest on capital would be provided. Interest on capital, for providing interest on capital, agreement is compulsory. In the absence of agreement, no interest on capital would be provided to any partners. And in point number B, in case of agreement, if there is an agreement that interest on capital is to be provided to the partners, in that case again 3 cases will be there. If partners have made agreement that interest on capital is to be provided on their capital, again if the firm will suffer loss, then no interest on capital would be provided. Means interest on capital can be provided only in case of profit, even if there is an agreement. Clear? यानी प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लॉस आएगा तो एग्रीमेंट होने के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. इन दिस सेकेंड पोर्शन, ठीक है, इफ इन केस ऑफ एग्रीमेंट, व्हाट कैन बी द second point, that is in case of sufficient profit. What is the meaning of sufficient profit? Like if interest on capital, if there are 2 partners and to both the partners total amount of interest on capital is to be given rupees 50,000 and profit amount of the partnership firm is rupees 80,000. 50,000 is to be provided as interest on capital and partnership firm has earned a profit of rupees 80,000. That means easily interest on capital can be provided. So that means full amount of interest would be given. Means 50,000, full amount of 50,000 would be provided, and after that, if profit amount is 80,000, then 30,000 would be distributed as profit among the partners. And what will be the next case in case of agreement? In case of insufficient profit. insufficient profit, यहाँ पे क्या लॉस था, लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है. सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जितना बनता है पूरा अमाउंट दे देना है. बट इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट तो है, बट उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है जिससे हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर पाए. सपोज ए एंड बी both are partners. If A is to be given interest 30,000 and B is to be given interest 50,000, that means total interest on capital is to be provided 80,000. But in that case, if partnership firm has profit only of rupees 30,000, if profit is 30,000 rupees and in the form of interest total 80,000 rupees is to be provided, then in that case what will be the situation? Interest would be given only to the extent of profit amount.
मीन्स 30,000 तक का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता। तो उस केस में यानी कि 30,000 जो इसको मिलना है, ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोपोर्शनेट अब इसको इससे कम अमाउंट मिलेगा। इसी तरीके से जो 50,000 जिसको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको पूरा नहीं मिलेगा बल्कि इसको और कम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नॉट 5, क्वेश्चन नंबर 8 रहा होगा, जिसमें इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आया था। ठीक है, इसको मैं डिस्कस बाद में करूंगा। बस ये है कि अब इसको 30,000 पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इसको 50,000 पूरा नहीं देंगे, इनको इसी प्रोपोर्शन में थोड़ा कम करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट देंगे और टोटल 30,000 तक का ही होगा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट थर्ड पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट नंबर सी। लास्ट के केस में ये था, प्रॉफिट के केस में 3 केस बनता है। अगर थर्ड केस में क्या होता है, if interest on capital is to be provided even in case of loss, sometimes partner may have entered into agreement that interest on capital would be provided anyhow even in case of loss। ठीक है, कोई भी चीज जब लॉस के केस में भी प्रोवाइड करना होता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट ही ऐसा पार्टनर्स ने किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही देना है पार्टनर्स की कैपिटल पे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एनी हाउ इट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। तो उस केस में मैंने लिखा फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी गिवन। ठीक है, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी गिवन। ठीक है, इतना ये पॉइंट याद रखना। अब उसको लेकर के एक एक करके मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा। So, after going through the various provision regarding interest on capital, now I will explain the things by taking an example. So first A point was there when there is no agreement. So if the agreement will not be there regarding interest on capital, no interest on capital will be provided. It is simple. I don't think that we should take any example. But point B, there was 3 cases when there will be agreement regarding interest on capital. In that case, 3 situations will be there. So for better understanding of that 3 situation, I will explain it by taking example. First example I am taking that there are 2 partners A and B and their profit sharing ratio is 3:2 and their capital, they had introduced capital rupees 2 lakh by A and rupees 1 lakh by B, and interest on capital that is 6% per annum. That means there is an agreement over the interest on capital that 6% per annum should be given to the partner's capital. And in that case, what happens to the partnership firm? Partnership firm suffers a loss. So first question, whether 6% interest on capital should be provided or not. तो अभी मैंने एग्जाम इसमें जो पॉइंट नंबर बी लिखा था उसमें मैंने बताया था कि एग्रीमेंट होते हुए भी इफ फर्म सफर्स लॉस, यानी फर्स्ट सब पॉइंट बन रहा था कि लॉस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी गिवन, देन सिंपली इफ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, sorry, if loss is there, that means loss would be distributed in the profit and loss account only. There will be no need to prepare profit and loss appropriation account, because profit and loss appropriation account is prepared only in case of profit and loss account. So loss, that is 50,000, that 50,000 loss would be transferred to their capital account in the profit and loss account only. That means there is no need to prepare profit and loss appropriation account. So by obviously profit and loss account में loss कब आता है? When debit side will be
इन एक्सेस। तो डेबिट साइड में देखो 50,000 है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, लॉस बांटेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू A's capital to B's capital account. Okay, that means there is no use of this interest on capital just because of loss. So that loss 50,000 would be distributed in the ratio of 3:2. So when 3:2 will be distributed 50,000 rupees, then 50,000 multiplied by 3/5 for A and 50,000 multiplied by 2/5 for B. So it will come 30,000 and 20,000, and that 50,000. Now both side is equal. Okay, there is no need to prepare profit and loss appropriation account. This was the example 1. You can note it down in your notebooks. Okay, now we are taking example number 2. In this example, I am taking A and B, both are partner. Their PSR is same 3:2, and their capital is 2 lakh, 1 lakh. Interest on capital is now they have agreed on 10% per annum, and in that case, profit of the firm is 60,000. Profit of the firm is 60,000. So first thing we have to think that whether interest on capital is to be provided or not. Yes, we have to provide just because of they have made an agreement over it. Now, if agreement is there, then there may be 3 situations. First situation may be of loss, but here is profit. Then it is sure that interest on capital is to be provided. अब वहाँ पे 2 केस फिर बनता है कि प्रॉफिट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट एंड प्रॉफिट ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट. So here we can check that interest on capital amount is 2 lakh and 10% interest. Then is interest would be 2 lakh is his capital and 10% per annum is 10/100. That means 20,000 is to be given to A as interest, and B's interest, B's capital is 1 lakh, so he will get on his 1 lakh 10%. That means 10,000. So 20,000 is to be given to A and 10,000 is to be given to B. Whole amount is to be given in the form of interest on capital is that 20,000 plus 10,000 means 30,000. 30,000 should be given as interest on capital. Now let us check that how many amount is in the form of profit. 60,000. We can say that it is sufficient profit. Easily these 30,000 can be given as an interest on capital. So in that case, profit and loss appropriation account would be prepared. Profit and loss appropriation account for the year ended. For the year ended, date would be given. Now, by profit and loss account, in bracket net profit. Net profit of what? 60,000. 60,000. Interest on capital is to be provided to interest on capital is ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 20,000 and 10,000 interest on capital is to B. So whole interest on capital that is 30,000, and in that case nothing else is given. So now divisible profit will be calculated 60,000 minus 30,000. So divisible profit that would be 30,000. So 30,000 would be distributed in their which ratio? In their profit sharing ratio. So 2
profit transferred to A's capital account, B's capital account. 30,000. So 30,000 would be distributed. 30,000 for A. 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 उसका रेशियो कितना है 3 और अपन में ऐड करते हैं 3 और प्लस 2 5. दैट मीन्स ए का जो पॉइंट बनेगा 18,000. इसी तरीके से बी के लिए जो बनेगा डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज 30,000. हिज रेशियो इज 2/5. दैट मीन्स 12,000. 18,000 and 12,000. Now account will be closed by making it equal of the both side. Okay, this was the part of working note. बोर्ड छोटा है इसलिए मुझको वर्किंग नोट बीच में करना पड़ता है. ओके, आई थिंक सेकेंड सिचुएशन यू हैव अंडरस्टूड. नाउ फॉर better understanding of third point of point number B. Again we are going to take another example. Now let's take another example. Again, there are two partners. Their PSR is 3:2. Their capital is same 2 lakh 1 lakh, and interest on capital at the rate 10% per annum. And now in this case, profit of the firm is rupees 21,000. So, if there is an agreement over the interest on capital, first thing we have to make analyze that if the firm has got sufficient profit or insufficient profit. Because in last two cases we have seen that when if the interest on capital is agreed by the partners, then if the firm will suffer loss, no interest on capital would be provided. And if there will be agreement over the interest on capital, so in case of sufficient profit, then interest on capital, whole interest on capital amount would be provided to the partners. But now here the case is different. What is this? Now the firm profit is 21,000, and at point number B, in third case, I had told you sometimes there may be insufficient profit. Means profit तो होगा, interest on capital का agreement होगा, उस केस में profit भी होगा. तो profit होगा तो interest on capital देना पड़ेगा, but profit इतना ज्यादा नहीं होगा जिससे interest on capital का amount easily दिया जा सके. जैसे यहाँ पे चेक करने के लिए हम देखते हैं कि A और B का interest on capital amount कितना बन रहा है. ठीक है, इसके लिए वर्किंग नोट भी देखते हैं. A's interest on capital. In capital is 2 lakh. 2 lakh 10%. 10% is interest rate. So that means 20,000 amount for the A as in the form of interest on capital. In the same case, B's interest on capital, B's capital is 1 lakh. So over this 1 lakh, 10%, that means 10,000. Now interest amount for A is 20,000 and interest amount for B is 10,000. So total interest that is to be paid by the firm, total interest 20,000 plus 10,000 means 30,000 is to be provided to the partners. But for providing this 30,000, firm has got only profit of rupees 21,000. So there it is the case of insufficient profit, जो अभी हमने पॉइंट नंबर बी में थर्ड केस में देखा. तो इनसफिशियंट के केस में हमें कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उस केस में क्या करना होगा, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड अमाउंट देना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. नाउ हियर वी कैन से दैट
दिस टोटल 20,000 अमाउंट वुड नॉट बी गिवन टू ए। इसी तरीके से 10,000 रुपीज पूरा बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसका रिड्यूस्ड अमाउंट दिया जाएगा और दोनों अमाउंट ऐड करके 21,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस केस में हम कैसे करते हैं, इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप ध्यान रखना है, स्टेप को नोट कर लेना। स्टेप 1, फर्स्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट roughly. First step, calculate interest amount roughly. Then step number 2, make ratio of interest amount. Make ratio of interest amount. Step number 3, distribute profit in above ascertained ratio as their capital, as their interest on capital, as their interest on capital. So these 3 steps we will follow the step. First step is calculate interest on interest amount roughly, and we have already calculated 20,000 and 10,000. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या है, मेक रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। जो इंटरेस्ट अमाउंट हमने इनका निकाला हुआ है इसका रेशियो बनाना है। अब रेशियो बनाना सबको आता होगा। 4040 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, यानी 2:1, और कट के छोटा नहीं हो सकता। तो यानी इन लोग का आपस में रेशियो क्या बन रहा है, 2:1। 2:1 किसका रेशियो है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट का रेशियो है। ठीक है, अब तुम बोलोगे 2:1 तो कैपिटल का रेशियो है, सिंपली यही लिया जा सकता है। लेकिन याद रखना, जब कैपिटल चेंज होगी, जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने लिए, सॉरी आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो 2:, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एनी पार्टनर कैन इंट्रोड्यूस एनी फर्दर कैपिटल। इसी तरीके से साल के बीच में कोई पार्टनर कैपिटल का अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, तो उस केस में फिर इसको हम नई बेस बना सकते, फिर उसके लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये मेन स्टेप याद रखना। अब 2:1 का रेशियो बना। और फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द अबव सर्टेन रेशियो एज देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो इस यानी सेकंड स्टेप में जो हमें रेशियो मिला, ठीक ना, यानी 2:1, इसी के रेशियो में हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। और जो बात डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही उनका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक्चुअल में कितना देना, ये तो देना चाहिए था, बट रिड्यूस्ड पोर्शन में कितना एक्चुअल में देना होगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल प्रॉफिट अमाउंट 21,000, इसी 21,000 का 2/3 14,000। इसी तरीके से 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी प्रॉफिट अमाउंट का 21,000 रेशियो 1, ओके 14,000 एंड 7,000, इसको हम टोटल करेंगे तो यही 21,000 जो कि टोटल हमें दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जहां 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलना चाहिए था, वहां इसको मिलेगा 14,000, एंड फॉर बी 10,000 की जगह यहाँ पे इसको 10,000 मिलना चाहिए था, उसको कितना मिल रहा है, 7,000। इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन 21,000, तो हम इधर ही लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में इसको हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट
दैट इज गिवन 21,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस बीस. ए को कितना दिया जा रहा है? 14,000 and 7,000 is to be given to B, that is 21,000. Now whole profit amount has been distributed in the form of interest on capital. No divisible profit is there and no divisible loss is there, so account will be closed. ठीक है, ये हमारा होता है जो पॉइंट नंबर बी का थर्ड केस मैंने बताया था, उसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था. यानी उसमें पूरा इंटरेस्ट ना देकर के प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड अमाउंट कर दे देंगे और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अमाउंट तक ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल टू क्लियर द पॉइंट नंबर सी. ठीक है, इसमें 3 प्रोविजन बताया. पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी में देयर वर 3 पॉइंट्स and now the last point, that is point number C. C में मैंने क्या लिखवाया था कि interest on capital is to be provided even in case of loss. loss के केस में भी प्रोवाइड करना होता है interest on capital. वो ऐसे जनरल टर्म पे क्या होता है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बट जब यही एग्रीमेंट हो जाए, पार्टनर्स बोले कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी गिवन एनी हाउ इवन इन केस ऑफ लॉस, देन उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा. यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन हमारा सेम है, बस ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि इट इज टू बी प्रोवाइडेड इवन इन केस ऑफ लॉस. ठीक है, ये अभी तक नहीं लिखा था बट इसमें लिखा हुआ है, और उस केस में कह रहा है लॉस ऑफ द फर्म इज 50,000. ठीक है, तो अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना ही है, लॉस से मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि बोला हुआ है कि हर कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो उस केस में हमारा क्या होगा, लॉस है. ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या करेंगे, टू नेट लॉस लिख सकते हैं. ठीक है, टू नेट लॉस 50,000. ओके, और थोड़ा नीचे बनाते हैं. ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम हो गया. प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, उसमें से प्रोवाइड करते हैं. यहाँ लॉस दिया हुआ है, टू नेट लॉस, क्योंकि लॉस का कैसा बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस माना है, यानी डेबिट साइड एक्सेस होती है. तो डेबिट साइड में हमारा दिया हुआ ऑलरेडी 50,000. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड. जब लॉस है, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ. नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है. बट जब बोल दिया है कि लॉस के केस में भी देना और लॉस आया हुआ है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये मानते हुए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, बाकी जो जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और बाकी जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसी की तरीके से यहाँ पे भी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, इज कैपिटल अकाउंट, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, अगेन 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000. इस केस में हमको पूरा देना होगा 1 लाख का 10%, 10,000, दैट मीन्स 30,000. नथिंग इज टू बी प्रोवाइडेड. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, किसी भी, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है. ठीक है, और डेबिट साइड हमारा बड़ा होने का मतलब क्या है, लॉस है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस.
लॉस और एक्सपेंस को डेबिट में, तो इसका डेबिट साइड बड़ा होने का मतलब क्या है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहीं पे अब मैंने बताया था कि लॉस होता है तो उसके लिए अब अलग से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तभी उसका बंटवारा होगा, तभी उसका एप्रोप्रिएशन होगा। लॉस आया यहीं पे हम पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे। तो लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। So now total loss is 80,000. So 80,000 would be distributed in their PSR 3, तो 3/5। ठीक है, $48,000 to A. Out of loss of rupees 80,000, 48,000 would be suffered by A, and for this 16,000 for B it will be multiplied with 2, so that will be 32,000, and now it will be 80,000. Account is closed. Okay, this was the last point. I hope कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेकर के या एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तब जाके इस वीडियो का एंड होगा। ठीक है, okay, now see this example. There are two partners A and B. They introduced capital on 1st April, means their opening capital is on 1st April 2016, 3 lakh for A and 2 lakh for B. And what is the another information given in the question? Further capital introduced on 30th September 2016. यानी ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें पार्टनर्स की कैपिटल का जो भी स्टार्टिंग बैलेंस होता था वही एंड तक होता था। जैसे अभी हमने लिया ए का 2 लाख, बी का 1 लाख, इसी तरीके से 2 लाख और 1 लाख पे सीधे हम 10%, 12%, 6% जो भी इंटरेस्ट होता था कैलकुलेट करते थे। बट देयर मे बी फ्लक्चुएशन इन द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर एनी पार्टनर कैन इंट्रोड्यूस some new capital, as well as during the year any partner can withdraw amount out of his capital for his personal use. तो इस केस में कैपिटल फिर चेंज होगी, पूरे एक साल तक वही सेम कैपिटल नहीं होगी, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी कैलकुलेटेड ऑन ब्रेक बेसिस। ठीक है, ब्रेक कर करके उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 लाख और 2 लाख ये 1st अप्रैल को इनकी कैपिटल शो कर रही है, बट ईयर के बीच में 30 सितंबर 2016 को पार्टनर ए जो है नाउ ही इज इंट्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। अभी तक उसकी कैपिटल 3 लाख थी, बट सितंबर 2016 से वो 1 लाख रुपया और लेकर के आ रहा है। नाउ हिज कैपिटल वुड बी 4 लाख। इसी तरीके से पार्टनर बी ही इज इंट्रोड्यूसिंग न्यू और फर्दर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2017, यानी 2 लाख तो इसकी स्टार्टिंग से थी, बट जनवरी में आके उसने 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन और कर दिया, यानी उसकी कैपिटल और ज्यादा बढ़ गई। तो इस केस में हमको क्या करना होगा, हमको फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल हैव टू टेक कंसेंट्रेशन ऑफ द अमाउंट, दैट हाउ मच अमाउंट इज यूटिलाइजिंग बाय द पार्टनरशिप फर्म एंड फॉर द ड्यूरेशन। तो आफ्टर कंसिडरिंग द अमाउंट एंड ड्यूरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन वुड बी कैलकुलेटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करेंगे, यहां पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे लिखते हैं फॉर ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब ये देखो 1 अप्रैल से कैपिटल है 3 लाख एंड 30 सितंबर से चेंज हो जा रहा है, तो यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर को चेंज कर रहा है, 30 सितंबर को ला रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर लास्ट यानी सितंबर एंड तक यही 3 लाख यूज हुआ होगा। ठीक है, फॉर्म में इतना ही पैसा यूज हुआ होगा, तो इंटरेस्ट भी 3 लाख का पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का पहले हम 3 लाख पे निकालेंगे, क्योंकि उस टाइम तक कैपिटल 3 लाख ही फॉर्म में यूज किया गया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 lakh, rate of interest that is 12% and duration 3 लाख कितने दिन तक यूज किया गया, 6 मंथ, तो 6/12। इधर लिखते हैं 18,000, ओके 18,000। नाउ फ्रॉम 30 सितंबर 1 लाख इज इंट्रोड्यूसिंग बाय इन। अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख पहले से थी, 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ हिज कैपिटल वुड बी 4 लाख। अब 30 सितंबर से यानी सितंबर को छोड़ देंगे, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक यानी सॉरी मार्च एंड तक, ठीक ना, ईयर एंड तक। अब कुछ अब ए के लिए कुछ और चेंज तो नहीं हो रहा है, नया कोई नहीं लेकर के आ रहा है, या इसमें से कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 3 + 1 4 लाख की कैपिटल कब से यूज हो रही है, अक्टूबर से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी ईयर एंड तक 6 मंथ हो रहे हैं, तो 6 मंथ के लिए 4 लाख पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 4 लाख प्लस 12%, 12/100 एंड नाउ अगेन फॉर 6 मंथ 6/12 6। ठीक है, नाउ ये विल बी गिवन 24,000। तो अब उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 42,000, यानी ये हमारा क्या है, वर्किंग नोट है। अब इस तरीके से ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको लिखना होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना लिखेंगे, टोटल, हम चाहेंगे तो अंदर कॉलम में 18 प्लस 24,000 को दिखा करके मेन कॉलम में 42,000 दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर कैपिटल अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग अमाउंट की कैपिटल यूज हुई होगी, तो फिर उसके बाद टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए और अमाउंट को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। इन द सेम केस B's interest on capital would be calculated for B. For B, B starting capital was 2 lakh and B is capital B की कब चेंज हो रही है, B is introducing new capital on 1st जनवरी, यानी कि 2 लाख जो वो कैपिटल उसने यूज किया था या इंट्रोड्यूस किया था, वो 2 लाख की कैपिटल कब तक यूज हुई है, 31 दिसंबर तक, यानी जनवरी से चेंज हो रही है। तो 9 मंथ की उसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, तो 2 लाख पे 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले। टू लाख, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 9/12, $18,000। Now from January he is introducing 1,20,000 more, तो अब जनवरी से 120 और ऐड कर देगा, तो कैपिटल इसकी कितनी बढ़ के जाएगी, 3,20,000, यानी कि पूरा जनवरी फरवरी एंड मार्च यानी ईयर एंड तक 3 मंथ तक उसकी कैपिटल कितनी थी, 3,20,000, तो 3,20,000 पे इसका 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 3,20,000 12% मल्टीप्लाइड बाई 3/12। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर बीच में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रीव कर ले, सॉरी अपनी कैपिटल का अमाउंट विड्रीव कर ले, तो कैपिटल का अमाउंट विड्रीव करेगा तो भी हम क्या करेंगे, नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या कैपिटल में से ड्राइंग करें, तो भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ब्रेक करके यानी कई पार्ट में करके हम कैलकुलेट करेंगे, उसे भी हम देखेंगे।
Okay, see one more example and last example for today. There are two partners, capital on 1st April 3 lakh, 2 lakh. On 30th September 2016, A introduced further capital of 1 lakh. And on 30th June 2016, B withdrew of capital. B withdrew 50,000 out of his 2 lakh. And now again information is given, withdrew capital on 1st January 2017. It is withdrawn by A, that is rupees 80,000. इसी तरीके से फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st February 2017 और वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था बी ने. यानी दोनों पार्टनर ने अपनी ओपनिंग कैपिटल के अलावा बीच में एक बार नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और एक बार अपनी कैपिटल का कुछ पोर्शन विड्रॉ कर लिया. उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, ऐसे ही ब्रेक करके निकालेंगे. तो यहाँ पे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सबसे पहले ए के लिए देखते हैं फॉर ए. ठीक है, ये इंटरेस्ट जब भी क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा इस तरीके से वर्किंग नोट कंप्लीट करोगे. वर्किंग नोट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अमाउंट शो करोगे. तो ये बताओ 3 लाख, पहले ए के लिए हम देखते हैं. ए का 3 लाख जो यूज हुआ था वो 30 सितंबर तक. 30 सितंबर से पहले विड्रॉ नहीं हुआ या उससे पहले कोई एडिशनल नहीं आया, तो इसका मतलब 6 मंथ तो ये 3 लाख यूज हुआ. तो इसके लिए 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही है 12% मल्टीप्लाइड बाई 6/12. $18,000. ठीक है, इसी तरीके से अब 30 सितंबर को 1 लाख इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब 4 लाख की कैपिटल होगी. आगे जब कब जाके चेंज हो रही है इसकी कैपिटल, देखो 1 जनवरी को ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है. कितना, 80,000. तो 1 जनवरी को विड्रॉ करेगा तो कैपिटल चेंज होगी ना. तो यानी कि 30 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 31 दिसंबर तक कैपिटल कितनी रहेगी, 4 लाख. ठीक है ना. यानी सितंबर में जब 1 लाख इंट्रोड्यूस हुआ तो अब 3 महीने के लिए कितनी कैपिटल यूज हो रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 लाख, क्योंकि जनवरी से फिर चेंज हो रहा है, कम हो जा रही है. तो अलग से 3 मंथ का हम 4 लाख पे निकालेंगे. 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% अपन 3 मंथ का निकालेंगे ना, 3/12. $12,000. ठीक है, इसी तरीके से अभी हम कितने मंथ का हम कैलकुलेट करें, टोटल 12 मंथ कैलकुलेशन होगा. ठीक ना, अगर स्टार्टिंग से अप्रैल से हम ले रहे हैं तो यहाँ 6 मंथ किया, यहाँ 3 मंथ किया. अब इसके बाद जनवरी से चेंज होगी. 4 लाख की कैपिटल हो गई थी जिसमें से विड्रू कर रहा है. विड्रू मीन्स निकालना, 80,000 निकाल लेगा. कितनी कैपिटल बचेगी, 3,20,000. 3,20,000 कितने मंथ यूज हो रही है, 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च. तो 3,20,000 12/100 एंड 3/12. ठीक है, ये हमारा 9,600. इसको टोटल कर देंगे 006 39,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का. बी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर बी. बी के लिए सबसे पहले 2 लाख कैपिटल था, कब जाके चेंज हो रहा है, जून में, 30 जून में. 30 जून तक तो वो कैपिटल में जून, 3 मंथ उसकी कैपिटल 2 लाख थी. 2 लाख 12% 3/12. 6,000. इसी तरीके से जून से चेंज हो रहा है, जून से क्या कर रहा है, विड्रू कर ले रहा है, निकाल ले रहा है, 50,000 निकाल ले रहा है. तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख में से 50,000 चली जाएगी, 1,50,000. आगे जाके चेंज हो रही है, कब चेंज हो रही है, 1 फेब को. 1 फेब को चेंज हो रही है, यानी कि 31 जनवरी तक वो कैपिटल वही यूज हुई होगी.
ठीक है, जून के बाद यानी जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है, 7 मंथ हो रहा है। तो 7 मंथ तक उसकी कैपिटल कितनी रही होगी? 1,50,000। 12% और कितना? 7/12। ठीक है, 10,500। 10,500। इसी तरीके से अब 150 थी, जिसमें से फर्स्ट फेब को नया कैपिटल क्या है? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 1,50,000। ठीक है, कैपिटल कितनी हो गई थी? 1,50,000। 1,50,000 में 1,50,000 और ऐड किया जा रहा है। कितना हो जाएगा कैपिटल? 3 लाख। वो 3 लाख कब से यूज हो रहा है? फर्स्ट फेब से। तो फेब एंड मार्च 2 मंथ तक 3 लाख यूज किया। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12। ये हमारी कैपिटल आ जाएगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे ऐड करके 22,500। तो इसका 39,600, 22,500। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना। ठीक है, लाइक करना। कुछ नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।